Continuing with the another lecture of the series in the regard of ad hoc network. So in this lecture we will discuss about the routing algorithms or and the design issues of writing algorithms and classification of the routing algorithms, right? So basically a routing is the process of selecting a path for traffic in a network or between or across the multiple networks. ये एक process है of selecting paths. It is process of establishing path. इसमें हम process में select भी करते हैं path को, establish भी करते हैं, maintain भी करते हैं, सब कुछ हम इसमें करते हैं. तो it is the process of establishing a path between the sender and receiver nodes for transmitting the packet along the path. बहुत ही simple words में अगर हम कहें तो it is the best optimum path. Routing finds the best optimum path, or that is known as the shortest path. And we have studied so many algorithms, how we can generate a shortest algorithm that we have studied in another subject, right? So there are some design constraints in designing routing algorithms that should be considered while designing these. First one is the mobility of nodes, क्योंकि हमारे मोबाइल जो है वो every time moving है, हर वक्त वो move करते रहते हैं, तो that should be considered while designing the algorithm. Next is the dynamic topology, because topology changes every time a new node comes in and a old node goes out of the network, right? Next is the no central point of coordination. This is the difficulty in designing a routing algorithm. Next is the limited bandwidth, sharing bandwidth. This is the MAC issue also. Energy limited battery power, because the main source of keeping the ad hoc network alive is the battery power of the device. This should be considered also. Establishment of end-to-end path is this is the another major issue in designing the routing algorithm. Next comes the design goals. There are some certain goals that should be met, like it must be scalable. जो algorithm आप बनाएंगे, जो protocol आप बनाएंगे for routing, that should be scalable. Means ऐसा नहीं है कि अगर उसमें 50 nodes के लिए ही वो काम करे, वो 100 nodes के लिए काम नहीं करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. That routing algorithm should be scalable. वो बड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ नोड्स को भी कर पाए हैंडल. इट मस्ट बी फुली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन. जो ये है, क्योंकि नो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ही हमारा प्रॉब्लम है, तो ये भी हमें देखना है कि वो फुली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. मस्ट बी अडेप्टिव टू टोपोलॉजी चेंजेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टोपोलॉजी है वो डायनेमिक है, चेंज हो रही है, तो वो अडेप्टिव होना चाहिए कि अगर 4 में से 3 नोड्स रह गए हैं तो भी वो उसको मैनेज कर पाए, और अगर सडनली 4 से वो 50 हो जाते हैं तो भी वो उसे अडेप्ट कर पाए, मैनेज कर पाए, और जो भी काम हो रहा है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो पाए. फुली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एंड अडेप्टेड टू टोपोलॉजी होना चाहिए. नेक्स्ट इज दी राउट कंप्यूटेशन एंड मेंटेनेंस मस्ट बी इन्वॉल्व इन मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स. Next is the it must be localized. Global changes involve a huge overhead. जो changes हैं वो localized होने चाहिए, क्योंकि जो global changes होंगे वो huge overhead उसमें include हो जाएगा. Must be loop free. loop नहीं बनना चाहिए. अगर circuit बन जाएगा तो फिर हमारी information आगे difficult होगी. Must effectively avoid stale routes. Must converge to optimal route very fast. Must optically यूज दी स्केयर रिसोर्सेज. जैसे कि जो आपके स्केयर रिसोर्सेज हैं, कौन से हैं वो? बैंडविड्थ, जो कि लिमिटेड होती है, बैटरी पावर लिमिटेड है, मेमोरी और कंप्यूटिंग, जो आपके पास कंप्यूटिंग पूरा होता है वो सारा क्या है आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि डिवाइस आपके पास छोटा ही होगा, मोबाइल होगा या कोई और ऐसा डिवाइस होगा जो कि पोर्टेबल हो. तो ये सारी जो कंस्ट्रेंट होती हैं ये आपके पोर्टेबल डिवाइस में होती है. तो उन रिसोर्सेज को, जो कि स्केयर रिसोर्सेज हैं, उनको ऑप्टिमली यूज करें. हमें ऐसे डिजाइन करना है एल्गोरिथम को. एंड इट शुड provide quality of service guarantee to support time sensitive traffic. Next comes the classification of routing protocols, and this is the important topic.
because the routing protocols for ad hoc wireless networks can be classified into four categories. फर्स्ट वन इज दी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अपडेट मैकेनिज्म कि मैं जितने भी नोड्स इंक्लूड हैं वो इंफॉर्मेशन को अपडेट कैसे करते हैं, कि सब अपने यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं या फिर उस टेबल को एक जना टेबल बनाता है फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है, तो किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं ये मैकेनिज्म पे जो डिपेंड करते हैं वो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू स्टडी दिस ओनली. यूसेज ऑफ टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी की जो चेंजेस हो रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को अगर हम यूज करते हैं तो उसके बेसिस पे कितने प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं. टेम्पोरल इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी उसके बेसिस पे आपके कितने जो होते हैं. टेम्पोरल इंफॉर्मेशन मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है पास्ट की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं या आप फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल. मतलब टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन को जब हम यूज करते हैं तो दैट कम्स अंडर द टेम्पोरल इंफॉर्मेशन protocols. Last one is the specific resources. ये resource based protocol है, right? तो first one is the proactive, जिन्हें हम table driven routing protocols कहते हैं. Second is the reactive, जो कि on demand होते हैं, और third one is the hybrid. Proactive protocols are also known as the table driven, क्योंकि यहाँ पर जितने भी nodes होंगे वो सब क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, इसीलिए आप इसे टेबल ड्रिवन भी कह सकते हैं. रिएक्टिव को ऑन डिमांड. टेबल ड्रिवन में जितने नोड्स, अगर 10 नोड्स होंगे 50 नोड्स होंगे, वो सब के सब क्या करेंगे, अपनी अपनी टेबल बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे, जिससे यहाँ पे ओवरहेड ज्यादा होता है. रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे कि यहाँ पे जब डिमांड होगी तभी वो रूट सेट करेंगे, तभी टेबल बनाएंगे और तभी उसमें अपडेट्स करके एक्सचेंज करेंगे, तो ओवरहेड यहाँ पे थोड़ा कम होता है. हाइब्रिड प्रोटोकॉल यूजेस दी एडवांटेजेस ऑफ बोथ. प्रोएक्टिव की जो एडवांटेजेस थी और रिएक्टिव की जो एडवांटेजेस है उन दोनों को यूज करके हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स काम करता है. सो यूसेज ऑफ टोपोलॉजी में हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, फ्लैट टोपोलॉजी रूटिंग और हिरारिकल टोपोलॉजी रूटिंग. टेम्पोरल बेस्ड में पास्ट टेम्पोरल इंफॉर्मेशन जो हम पुरानी ओल्ड इंफॉर्मेशन को यूज करके करेंगे, और फ्यूचर टेम्पोरल इंफॉर्मेशन. रिसोर्सेज में स्पेसिफिक रिसोर्सेज हमारे पावर जो होती है, बैटरी पावर, पावर अवेयर रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन असिस्टेड रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं. So here you can see protocol based on information routing. According to our syllabus we have to focus on this. जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं हमें उन पे फोकस करना है, एंड दे आर ऑफ थ्री कैटेगरीज: प्रोएक्टिव, टेबल ड्रिवन, reactive, on demand and hybrid, which uses the advantages of both protocols. And in these we have to study these only, jin pe star laga hai, we have to study these algorithms: GSR, DSDV, DSR and AODV. So this is the concept and the basics of routing protocols.